रियासती वज़ीर इंडस्ट्रीज के टी रामाराव ने अपने महकमे की सालाना रिपोर्ट पेश की और बताया कि साल 2020-21 में रियासत की बरामदात 1,45,000 करोड़ तक जा पहुंची है। उन्होंने बताया कि 2014 में जिस वक्त नई रियासत तेलंगाना का वजूद अमल में आया था, बरामदात सिर्फ 57,000 करोड़ थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना IT शोबे में जबरदस्त तरक्की कर रहा है। गौरवनीयुलु इंडस्ट्रीज मरियु IT శాఖ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ సెక్రటరీ శైలజ రామయ్యర్ గారు, గౌరవనీయులు ఇండస్ట్రీస్ కమిషనర్ మాణిక్ రాజ్ గారు, గౌరవనీయులు TSIIC మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నరసింహారెడ్డి గారు, వెంకట నరసింహారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు ఈ సేవ డైరెక్టర్ గారు, ESD డైరెక్టర్ గారు, ఎలక్ట్రానిక్ సర్వీస్ డెలివరీ డైరెక్టర్ గారు GT వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఇండస్ట్రీస్, IT మరియు హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క ముఖ్య అధికారులు, పాత్రికేయ మిత్రులు, పరిమితంగానే ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. లేకపోతే నిజానికి ఈసారి మనం సాధించిన పురోగతి, ఈ సంవత్సరం నిజానికి మనం ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో కూడా సాధించిన పురోగతిని చాలా పెద్ద ఎత్తున నిజానికి సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. సంబరమైన ఒక వాతావరణంలో సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి. ముందు అనుకున్నాము, ఇండస్ట్రీ దిగ్గజాల సమక్షంలో జాతీయ స్థాయిలో ఉండే పెద్దల్ని కూడా ఆహ్వానించి వారి సమక్షంలో ఈ రిపోర్ట్ను విడుదల చేసి, ముఖ్యంగా తెలంగాణలోని పారిశ్రామిక రంగం, తెలంగాణలోని IT రంగం, తెలంగాణలోని హ్యాండ్లూమ్స్ అండ్ టెక్స్టైల్స్, చేనేత మరియు జౌలి ఏ రకంగా ముందుకు పోతుందనేది ప్రకటిద్దాం అనుకున్నాం. కానీ కరోనా నేపథ్యంలో రెండవ దశ, రెండవ వేవ్ కూడా ఉన్నది కాబట్టి చాలా పరిమితంగానే చేద్దామన్న ఉద్దేశంతో ఈ లిమిటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తూ ఉన్నాం. మీకు ఆ 2 రిపోర్ట్స్ కూడా మీకు ఇప్పుడే అందజేస్తాము. ఇంతకుముందే జయేష్ రంజన్ గారు చెప్పినట్టు ఆ నివేదికల్ని ప్రతి సంవత్సరం తూచా తప్పకుండా, మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు, మమ్మల్ని ఎవరు ఒత్తిడి చేయలేదు, ప్రతిపక్షాలు అడగలేదు, ఎవరు అడగలేదు. కానీ ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండాలి. గవర్నెన్స్ అంటే ఏ రకమైన పురోగతి డిపార్ట్మెంట్లో జరుగుతూ ఉందని చెప్పాలన్న ఉద్దేశంతోనే ప్రతి సంవత్సరం తెలంగాణ ఫార్మేషన్ డే సందర్భంగా జూన్ 2 కొద్దిగా అటుగానో ఇటుగానో వార్షిక నివేదికల్ని విడుదల చేస్తూ వస్తూ ఉన్నాం. అందులో ఒకటి మాత్రం పక్కాగా చెప్పొచ్చు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం భారతదేశంలోనే అతి చిన్న వయస్సు కలిగిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ, అన్నిటికంటే లేటెస్ట్గా ఆవిర్భవించిన రాష్ట్రం అయినప్పటికీ మరి ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో కూడా ముందుకు దూసుకొని పోతూ ఉంది. దానికి ఖచ్చితంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికత, వారి విధానాల రూపకల్పనలో వారు తీసుకునే చొరవ, విధానాలు రూపొందించిన తర్వాత వాటి అమలులో వారు చూపెట్టే పట్టుదల దీనికి కారణమని చెప్పి ముమ్మాటికి చెప్పక తప్పదు. దానికి సమర్థవంతమైన అధికార గణం తోడైనప్పుడు, ఇక్కడ వేదిక మీద కూర్చున్న మా టీం ఏదైతే ఉందో గత 6-7 సంవత్సరాలుగా ఈరోజు భారతదేశంలోనే పారిశ్రామిక రంగంలోని దిగ్గజాలు, IT రంగం కానీ పారిశ్రామిక రంగంలోని దిగ్గజాలు తెలంగాణ వైపు చూస్తూ ఉన్నాయి అంటే ఒక మంత్రి వల్లనో, ఒక ప్రభుత్వ అధినేత ముఖ్యమంత్రి గారి వల్లనో మాత్రమే కాదు. డెఫినెట్గా దిస్ ఇస్ ద విక్టరీ ఆఫ్ ద టీమ్. అందరం కూడా కలిసికట్టుగా జయేష్ రంజన్ గారు, శైలజ గారు, మాణిక్ రాజ్ గారు, हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने मानसून से कबल मजलिस बल्दिया को मुतहरिक हो जाने की हिदायत दी। असम्बली हल्के उप्पल में SNDP और मानसून से मुताल्लिक कामों का मुआयना करने के बाद एक जायजा इजलास से वो खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि बल्दी अमले की कोताही, गफलत और लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाती अहदेदारों के खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाएगी। इस इजलास में रुकन असम्बली सुभाष रेड्डी, डिप्टी मेयर श्रीलता शोभन रेड्डी और मुताल्लिका कारपोरेटर्स के अलावा JSMC के अहदेदार भी शरीक थे। रियासती हुकूमत तमाम महकमों में आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तादाद को घटाने पर गौर कर रही है। चुनाचे तमाम महकमे जात से जून 2014 के बाद से जिनकी खिदमत आउटसोर्सिंग की हैसियत से ली जा रही है, तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत रियासत में 50,000 मखलूआ जायदादों को जल्द से जल्द पूरा करने के इक़दाम करना चाहती है। महकमे पुलिस को 5,000 आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन रखने के लिए कहा गया था, लेकिन इस महकमे में आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन की तादाद 16,000 से ज़्यादा है।
यही हाल तकरीबन दूसरे मौके में जात का है, जहां जरूरत से ज्यादा अफराद को रख लिया गया है। रियासत के 3 पुलिस कमिश्नरेट हैदराबाद, साइबराबाद और रच्चाकुंडे में 12 मई को नाफिज लॉकडाउन के बाद से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख गाड़ियां जब्त की गई हैं। इनमें 4 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ऑटोज और ट्रक शामिल हैं। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी के बशमूल मुख्तलिफ उन्मानात के तहत 1,000 रुपए के जुर्माने किए गए। इस तरह हुकूमत को 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। फिर भी हुकूमत का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की आमदनी मुतासिर हुई है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नजर रियासत में एमसेट और दूसरे मसाबक़ती इम्तिहानात भी मनसूख कर दिए गए। वाज़ेह है कि हुकूमत ने इंटर साल दुबम के इम्तिहानात की मनसूखी और तमाम उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया है। इंट्रेंस इम्तिहानात के लिए कम से कम 6 हफ्ते दरकार होते हैं। चुनाचे आइंदा माह एग्रीकल्चर और इंजीनियरिंग के होने वाले इंट्रेंस इम्तिहानात को मुलतवी कर दिया गया है। अब नई तारीख का बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। ज्वाइंट इंट्रेंस इम्तिहानात भी जो अप्रैल में होने वाले थे, उसकी तारीख बढ़ाकर 3 जुलाई कर दी गई है। लेकिन 3 जुलाई को भी ये इम्तिहानात होंगे या नहीं, इसके बारे में क़तई तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। रियासती हुकूमत ने गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन से लैस 200 बिस्तरों की मंजूरी दी है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने गुज़िश्ता माह इस दवाखाने के दौरे के दौरान इस बात का वादा किया था। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने जुमेरात को दवाखाने का मुआयना किया और सुपरिटेंडेंट डॉक्टर गोपाल से बातचीत की। गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर बदरुद्दीन और टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान भी उनके हमरा थे। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर हैदराबाद एयरपोर्ट से बेगमपेट के किम्स हॉस्पिटल को कल्ब और जिगर की पेवंदकारी के लिए इंसानी आज़ा की बर्ख रफ्तारी के साथ मुंतकली का इंतजाम किया। ग्रीन चैनल प्रोग्राम के तहत एयरपोर्ट से दवाखाने के रास्ते पर सारी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। चुनाचे ये आज़ा ले जाने वाली गाड़ी ने 36 किलोमीटर का सफर सिर्फ 26 मिनट में तय किया। यहाँ बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस ने इस साल जनवरी से अब तक 14 मरतबा ऐसे बंदोबस्त कर चुकी है। कारवान के मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीजन के नजीम कॉलोनी में NP2 पाइपलाइन के कामों का मुआयना किया और इस काम को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। उनके हमरा डिप्टी इंजीनियर सनाउल्लाह, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उदय और नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान के अलावा पार्टी के कायदीन भी थे। कौसर मुहिउद्दीन ने गोलकुंडा वार्ड ऑफिस में सैनिटरी वर्कर्स में कोविड-19 किट्स तकसीम भी किए। बल्दी डिवीजन आईए सदन के सिंगारानी कॉलोनी में रहने वालों ने, जिनमें बेशतर सलम इलाके के लोग थे, पानी की किल्लत के मसले को लेकर आज जबरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने TRS का वादा सिर्फ वादा रहा है। इलाके में 13,000 अफराद रहते हैं, लेकिन उन्हें बुनियादी सहूलत तक फराहम नहीं की गई। CPI ने इस एहतजाज को मुनज़्ज़म किया था। CPI के सिटी सेक्रेटरी NT नरसिम्हा और CPI लीडर शंकर नायक ने वाटर टैंकरों के जरिए इस इलाके में पानी की सरबराही का बंदोबस्त करने की मांग की। కూడా హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి స్లమ్స్ అన్నీ కూడా గత పాలకులు ఏ పద్ధతుల్లోనైతే నిర్లక్ష్యం చేశారో అదే పద్ధతుల్లో 7 సంవత్సరాలుగా నిర్లక్ష్యంతోనే ఉంటూ 7 సంవత్సరాల కంటే ముందు ఎట్లా ఉందో సింగరేణి కాలనీ పరిస్థితి ఇప్పుడు కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది. ప్రభుత్వం మిషన్ భగీరథ ద్వారా రూపాయికి నల్లా ప్రతి పేదవాడికి రావాల్సిందే అని చెప్తున్నప్పటికి కూడా ఈ యొక్క సింగరేణి కాలనీలో ఆ ఒక ఇంటికి నల్ల రాకపోవడానికి కారణమేందో ఈ అధికారులు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. నిజానికి లిటిగేషన్లు లేవా అని చెప్తే ఈ హైదరాబాద్లోనే వేలాది ఎకరాల స్థలంలో కోర్టులో పెండింగ్ ఉండగానే అన్ని వాటర్ కనెక్షన్ ఉంది, డ్రైనేజ్ ఉంది, కరెంటు కనెక్షన్ ఉంది, అన్ని కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. కేవలం ఒక సింగరేణి కాలనీలో ఎందుకు వర్తిస్తుందని చెప్పి మేము ప్రభుత్వ అధికారులను అడగడం జరిగింది. దాంట్లో భాగంగానే ఈరోజు ధర్నా చేశాం. ధర్నా చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి DGM గారిని కలవడం జరిగింది. ఒకవేళ ఇప్పటికైనా వాటర్ వర్క్స్ అధికారులు కానీ ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ వెంటనే కనుక నల్ల కనెక్షన్లు ఇవ్వకపోతే మరింత పెద్ద ఎత్తున ఈరోజు ఎక్కడైతే MD ఆఫీస్ ఉందో ఖైరతాబాద్ దగ్గర అక్కడ పెద్ద ఎత్తున ఆందోళన చేస్తాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ అధికారులు దిగొచ్చి సింగరేణిలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకందరూ కూడా ఇంటింటికి నల్ల కలెక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి CPI హైదరాబాద్ కౌన్సిల్ తరఫున డిమాండ్ చేయడం అనేటటువంటి జరుగుతుంది. LB नगर ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर नागामल्लू, जो एक फर्शनास पुलिस अहदेदार समझे जाते हैं, वहीं एक हमदर्द इंसान भी हैं। उन्होंने हालिया अरसे में 33 मरतबा अपने खून का रजाकाराना अतिया दिया है। किम्स हॉस्पिटल सिकंदराबाद में एक मरीज को खून के अतिये की शदीद जरूरत की अपील पर वो फौरी दवाखाना पहुंच गए। उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों की मदद करने पर उन्हें कल्बी सुकून मिलता है।
कुसुमपुरा पुलिस ने मुस्तैदपुरा कारवान में एक घर पर धावा करके ममनुआ गुटखा और तंबाकू का भारी जखीरा बरामद किया। इंस्पेक्टर शंकर ने बताया कि शजील नामी एक नौजवान गुजरात से ममनुआ जर्दा और तंबाकू लाकर लॉकडाउन में लोगों को ज्यादा कीमत पर फरोख्त कर रहा था। आज 7-8 बजे के बीच में हमारा पुलिस कुसुमपुरा स्टाफ एंड ऑफिसर्स पेट्रोलिंग में ऑन क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मुस्तैदपुरा में एक शागिल के बच्चा, शागिल उसका नाम है, एज 28-30 ईयर्स रहता, उनका घर में रेड करे तो ग्राउंड फ्लोर में टोटल 3 क्विंटल 10 किलो जर्दा रखा हुआ है। ये जर्दा उन्होंने गुजरात से मंगा लेके बेगम बाज़ार में जो फिश मार्केट में खरीदता एक ही बार, इन्होंने डेली घर में 50 ग्राम 100 ग्राम ऐसा बना देके पुराना पुल चौरस्ता में हाई रेट को बेचता। 40 रुपये एक 50 ग्राम 40 रुपये 80 रुपये कैसा बोले तो वैसा जो मौका टाइम पर ये होगा से आज हम लोग रेड करके उसका उनके घरों में 3 क्विंटल का गन्नी बैग्स और प्लास्टिक बैग में भरा हुआ था, वो लेके आके सीज करा, केस भी बुक करा हुआ है उसके ऊपर अंडर कोप्टा एक्ट में केस बुक करा हुआ है। सब ये जर्दा बोले तो 39 रुपये 50 रुपये में जो पैकेट बेचता बोल रहे हैं, गांजा टाइप में कुछ है क्या सर इसका? ऐसा गांजा कुछ भी नहीं होता इसमें, गांजा इसे जर्दा को थोड़ा सुनना और उसको तो केमिकल मिला दिए तो जस्ट लाइक गुटखे के वैसा होता, ये लेके जाके उन लोग उसमें मिला दे के खा लेते। ये भी इन डेंजर ऑफ ह्यूमन लाइफ, कैंसर भी हो सकता, मुंह का बीमार भी होता। वेजून की पुलिस टास्क फोर्स ने दुर्गानगर जियागुड़े में एक मकान पर धावा करते हुए जुआ खेलने में मसरूफ 13 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 47,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए कुसुमपुरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इंस्पेक्टर टी राजेश और सब इंस्पेक्टर शेख कविउद्दीन ने यह धावा किया था। मुजफ्फरनगर के कोयली कोला मंडल में एक तेंदुआ पकड़ा गया। बताया जाता है कि मौजे मरगुपल्ली में बकरियों पर हमले के बाद देहाती इस तेंदुए के पीछे पड़ गए और उस पर हमला किया, जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो गया। मौके में जंगलात ने इत्तला मिलने पर उसको अपने कब्जे में लेकर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मुंतकिल किया। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में दाखिलों के ख्वाहिशमंदों के लिए दिल्ली में वाक़े अमरीकी सिफारत खाने और दूसरे शहरों में वाक़े कौंसल खानों में जुलाई और अगस्त के दरमियान इंटरव्यूज होंगे। अपॉइंटमेंट्स के लिए 14 जून से अमरीकी सफारत खाने की वेबसाइट दस्तयाब रहेगी। तकरीबन 1 माह से जारी लॉकडाउन में नरमी के दौरान आज जुमेरात को दरगाह हजरत यूसुफैन नामपल्ली पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद देखी गई, लेकिन लॉकडाउन और कोविड-19 कवायद के तहत उन्हें दरगाह के अंदरूनी हिस्से में दाखिले की इजाज़त नहीं मिली। चुनांचे कई ज़ायरीन दुकानों से फूल लेकर दरगाह के बाबू दाखिले पर रख दिए और फातिहानी के बाद चले गए। दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन में नरमी के दौरान तमाम सरगर्मियों और कारोबार करने वालों को इजाज़त दी गई है, लेकिन दरगाह में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही है, जिससे अकीदतमंदों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। मैं 40 साल से हूँ यहाँ, मेरा गुजर बसर इसमें है। मैं बेवा हूँ, मेरी बच्ची भी बेवा है और 40 साल से ऐसा नहीं हुआ। अब जो ऐसा हुआ हम बहुत परेशान हैं। कैसा करेंगे, क्या करेंगे, किसको बोलेंगे, हम परेशान हैं। अगर आप हमारी मदद करेंगे, आप हमारे वास्ते एक दर खोलेंगे तो हम आपको इतनी दुआ देंगे, हर वक्त कामयाब होते देंगे। आपकी सेहत तंदुरुस्ती और आप कामयाब होते जाएंगे। गरीब लोग हैं सब, हम लोगों की यहीं कमा के यहीं खाने वाले सब, हम लोग दूसरी जगह कमा नहीं सकते, कुछ नहीं। आप लोग मेहरबानी, आप लोगों की बोले अगर दरगाह तो हम लोग कुछ भी बेच लेके हमारे बच्चों को पाल लेते साहब। आप लोग ऐसे दुआ करेंगे, खाली मेहरबानी आपकी। इतने जितने लोग हैं पूरे परेशान बैठे हैं 2 महीने से साहब, बहुत परेशान है हम लोग। खाने को नहीं आजकल बोल रहे साहब, इतने दिनों से हम लोग परेशान है, कहाँ से खाएंगे बोलो, कोई देने वाला नहीं हम लोग को। आप लोग बड़े लोग हैं, आप लोग हम लोग बोलते ना साहब, किसको बोलेंगे। ये पूरे फूलों के दुकान है जितने भी है दरगाह में अंदर, खिलौनों के फूलों के जितने भी है साहब,
पूरे भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, उन लोगों का गुजारा कैसा चलेगा। बाहर रोड पे बैठ के आखिरी में बेच ले रहे टेबलों पे दाल लेके, तो भी नहीं चल रहा कारोबार, गेटा बंद है, तो कहाँ से जाएंगे लोग, कहाँ ज़्यारत तक करेंगे। चले आ रहे आके देख के, क्या करेंगे बोलो साहब, क्या मर जाना क्या बोलो, बच्चे कच्चे वाले हैं सब, हर कोई फैमिली वाले हैं, पूरों का इस पर ही गुजारा है सब हम लोगों का, और कोई नहीं हम लोगों को देने वाला। आप लोग ही मदद करो, आप लोग इतने गेट तो भी खोल दो, मेहरबानी आप लोगों की, हमारे बच्चों के हंसते आपको दुआ लगेंगी, हम आपको दुआ करेंगे साहब, मेहरबानी आप लोगों की। रचागुंडा के पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने ट्रैफिक पुलिस के अमले में फेस शील्ड तकसीम किए। हीरो मोटर्स ने 2 लाख रुपए मालियती इन शील्ड्स का रचागुंडा पुलिस कमिश्नरेट को हथिया दिया था। सिविल सर्विस के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंटरव्यूज 2 अगस्त को मुकर्रर हैं। कमीशन के जराये के मुताबिक इस तारीख में तब्दीली के लिए कोई दरखास्त वसूल नहीं हुई। ये इम्तिहान अप्रैल में मुनक़िद होने वाले थे, जिन्हें कोविड-19 की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मुलतवी कर दिया गया था। यहाँ बताना जरूरी होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात 3 मरहलों में होते हैं। पहला मरहला प्रिलिमिनरी, दूसरा मेन और तीसरा शख्सी इंटरव्यूज होता है, जिसके बाद IAS, इंडियन फॉरेन सर्विस और IPS समेत 17 जुमरों के अहदेदारों का इंतखाब अमल में आता है। मानसून की पहली बारिश ने महाराष्ट्र के कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई है। जिले रायगढ़ के 20 मुआवजात के 1000 अफराद को महफूज मकामात को मुंतकिल करना पड़ा। बम्बई में भी जबरदस्त बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से मुल्क के सबसे बड़े शहर में आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई। धुंध की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट को आधे घंटे के लिए बंद कर देना पड़ा, जबकि कई फ्लाइट्स को मनसूख कर दिया गया था। मुंबई के मलाड वेस्ट में एक रिहायशी इमारत मुनहदिम होने के नतीजे में कम से कम 11 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात 11 बजे पेश आया। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने इस वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार किया और मरने वालों के पसमानदगान के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया है। मलाड का वाक़या दिल दहला देने वाला है, क्योंकि इस हादसे में रफीक शेख नामी एक शख्स के 9 अरकान खानदान फौत हो गए। बताया जाता है कि रफीक शेख हादसे के वक्त घर पर नहीं था, वो कुछ देर पहले ही दूध लाने के लिए घर से निकला था। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.